یہ پیسے جو ہیں یہ حکومت پاکستان آپ کے لیے بھیجتی ہے، یہ آپ کے پیسے ہیں، اس پہ کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکیلمنٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اربوں روپے کا اضافہ ہو چکا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں، اور یہ اربوں روپے کی رقم جو ہے آپ تمام لوگوں میں تقسیم ہونی ہے۔ پچھلے سال کی نسبت 17% بجٹ رکھا گیا ہے، اور یہ 17% کا جو اضافہ ہے یقیناً آپ تمام لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ ایک تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ملنے والی سرمائی قسطوں کی رقم میں بھی اضافہ ہوگا، اور ساتھ ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لینے والی خواتین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ صرف 1 کروڑ کے قریب خاندان جو ہیں انہیں حکومت کی جانب سے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امداد ملتی رہتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس اضافے کے بعد یہ تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک بڑھ جائے گی۔ تو اس سے آپ کو واضح ہو سکتا ہے کہ اس بار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کتنی بڑی اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ صرف کفالت پروگرام کی رقم میں اضافے کے حوالے سے نہیں بلکہ بینیفیشریز کی تعداد کے حوالے سے بھی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 2024 میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں اضافہ ہوا، پھر 2025 میں بھی اضافہ ہوا، اب 2026 میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1000 روپے کفالت پروگرام کی رقم میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اس بار تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ رقم میں بھی ہوگا، اور تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ بینیفیشریز کی تعداد میں بھی ہوگا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اب وہ تمام لوگ جو حقدار ہیں لیکن ابھی تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ نہیں بنے، انہیں انشاءاللہ حکومت کی جانب سے فوری طور پر اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ کافی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یا تو نااہل ہو چکے ہیں، یا ان کا PMT سکور 32 سے اوپر چلا گیا ہے، یا پھر عارضی طور پہ وہ بلاکڈ ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اب حکومت کی جانب سے BISP کا حصہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ جب 20 لاکھ کے قریب نئی خواتین ایڈ ہوں گی تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ تمام لوگ ضرور شامل کیے جائیں گے جو حقدار ہیں یا کچھ پوائنٹ سے اس پروگرام سے نااہل ہوئے ہیں۔ اسی طرح بچوں کے وظائف کے حوالے سے بھی کافی اہم ترین اپڈیٹس ہیں، نئی قسطوں کے حوالے سے بھی کافی اہم ترین اپڈیٹس ہیں، وہ تمام تر اپڈیٹس آپ کو دیتے ہیں۔ کافی سارے خاندان اہل ہو چکے ہیں، کافی سارے خاندان نااہل ہو چکے ہیں، جس پر بھی بات کرتے ہیں بغیر کسی انتظار کے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسکیلمنٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ تمام لوگ ابھی سے یوٹیوب چینل اسکیلمنٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو ویورز، آج کی سب سے بڑی اور اہم ترین اپڈیٹ یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں کہ BISP کے بجٹ میں اضافہ تو ہو چکا ہے، کیونکہ وفاقی بجٹ 2026-27 کے مطابق جو ہے سال 2027 سے 20 لاکھ بینیفیشریز کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اور 2027 سے بینیفیشری کو 20,000 روپے کی قسط ملے گی۔ اس سے پہلے آپ نے 18,000 روپے کی رقم کے حوالے سے بھی سنا ہوگا، اور 20,000 روپے کی رقم کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو آخر حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، IMF کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے پاکستان حکومت سے کہ بینیفیشریز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے، اور ساتھ ہی کفالت پروگرام کی رقم میں 5500 روپے فی بینیفیشری کی رقم تک کا اضافہ کیا جائے۔ تو اب اگر 14,500 روپے کی قسط میں 5500 روپے کا اضافہ ہو تو آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ 14,500 روپے بڑھ کر 20,000 روپے کی رقم تک چلے جائیں گے، اور پھر 20,000 روپے ہر 3 ماہ بعد آپ کو صرف کفالت پروگرام کے ذریعے ملیں گے۔ بچوں کے وظائف جو ہیں وہ الگ سے ہیں۔ آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ کو 14,500 روپے کفالت پروگرام کی قسط مل رہی ہے تو ادھر سے بچوں کے وظائف اتنے آ جاتے ہیں کہ جو اس قسط سے بھی ڈبل ہو جاتے ہیں۔ تو جب کفالت پروگرام کی قسط 20,000 آئے گی تو بچوں کے وظائف کی رقم میں مزید 1,000 سے لے کر 1,500 یا 2,000 روپے کا فی بچہ کے حساب سے اضافہ کیا جائے گا۔ تو جب اتنا بڑا اضافہ ہو جائے گا آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ آپ کو ہر 3 ماہ بعد یہ صرف 20,000 ہی نہیں، یہ 40 سے 50,000 روپے تک کی رقم فراہم کی جائے گی۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو حقدار ہیں۔ اس سے پہلے تو کافی سارے ایسے لوگ بھی شامل تھے اس پروگرام میں جو جگاڑ کے تحت اس پروگرام کا حصہ بنے ہوئے تھے، جو حقدار نہیں تھے، انہیں پیمنٹس مل رہی تھیں، یا جو آج سے 3-4 سال پہلے حقدار تھے لیکن اب ان کے مالی حالات بہتر ہو چکے تھے، پھر بھی انہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے مل رہے تھے۔ تو ایسے تمام لوگوں کو اب پروگرام سے نکال دیا گیا ہے۔ کافی ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے تحت ان لوگوں
लोगों को बाहर निकाला गया है और ये सारा प्रोसेस सिर्फ डायनामिक सर्वे की वजह से ही कंप्लीट हुआ है। अब ये जो डायनामिक सर्वे है इसके बारे में आप तमाम लोग जानते हैं कि हर बेनिफिशियरी का 3 साल बाद सर्वे किया जाता है और वो लोग जो नाअहल होते हैं उनका 2 साल बाद सर्वे किया जाता है। और साथ ही 8171 वेब पोर्टल पर बताया जाता है कि आपका आने वाला सर्वे कब होगा, तो उस सर्वे के मुताबिक आप वक्त पे अपना सर्वे करवाते रहते हैं, हकदार होते हैं तो आपको पेमेंट्स मिलती रहती हैं। अगर आप सर्वे नहीं करवाते या सर्वे तो करवाते हैं लेकिन हकदार करार नहीं पाते तो फिर आपके पैसे बंद हो जाते हैं। मतलब ये है कि हकदार होने की सूरत में आपको सर्वे करवाना होगा ताकि हुकूमत को पता चले कि आप हकदार हैं और आपको उसके बाद इमदाद जारी की जाए। अभी बहुत बड़ी तादाद में लोगों के मसाइल आ रही हैं कि भाई हमें पैसे मिल रहे थे, अचानक से हमारे पैसे बंद हुए। तो जब उनकी वजह मालूम होती है, उनसे पता करते हैं कि भाई आखिर वजह क्या बनी है, या आपको सर्वे करवाने का कोई मैसेज आया हुआ था या 8171 वेब पोर्टल पे क्या बताया जा रहा है, तो वो बताते हैं कि भाई हम तो 3-4 सालों से पैसे ले रहे थे लेकिन हमें कभी कोई मैसेज भी नहीं आया और हमने कोई सर्वे नहीं करवाया। तो 8171 वेब पोर्टल से या उनका डेटा BISP की ऑफिस से चेक करवाने के बाद ये पता चलता है कि भाई उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया। हाँ, काफी सारे लोगों के पास रजिस्टर्ड सिम नहीं थी और रजिस्टर्ड सिम ना होने की वजह से उन्हें मैसेज जो आना था वो रजिस्टर्ड सिम पे आया होगा, सिम ना होने की वजह से वो मैसेज नहीं देख सके और इस तरह गफलत में रहे और उनका डायनामिक सर्वे नहीं हुआ। तो इस गफलत से बचने के लिए अब तो वॉलेट सिम हर बेनिफिशियरी के पास पहुंच रही है, लेकिन फिर भी आप 8171 वेब पोर्टल से चेक करते रहा करें। तो इस तरह अगर हो जाता है आप किसी भी वजह से डायनामिक सर्वे वक्त पे नहीं करवा पाते तो फिर भी आपको नया सर्वे करवाने तक नाअहल कर दिया जाता है। जब फिर आप अपना नया सर्वे करवाते हैं उसमें ये देखा जाता है कि आप हकदार हैं या नहीं। अगर तो आप हकदार होते हैं आपको अहल भी किया जाता है और आपको पेमेंट्स भी जारी कर दी जाती हैं। इसी तरह अगर आप नाअहल करार पाते हैं तो आपकी फौरी तौर पर पेमेंट्स भी रोक दी जाती हैं और आपको अगले 2 साल के लिए नाअहल कर दिया जाता है। तो अब नाअहल होने वाले खानदानों में सबसे बड़ी तादाद, सबसे ज्यादा तादाद जो है वो उन लोगों की है जो डायनामिक सर्वे नहीं करवा रहे, और ये ऐसे लोग होते हैं जो पिछले 3-4 सालों से पैसे ले रहे होते हैं। मतलब रेगुलर बेनिफिशरीज होती हैं और पुरानी बेनिफिशरीज होती हैं, उनके पैसे बंद हो रहे हैं। तो इससे बचने का हाल यही है कि आप डायनामिक सर्वे करवाएं। इसी तरह इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो पहले से भी पैसे ले रहे थे, अब डायनामिक सर्वे भी करवा लिया फिर भी उनके पैसे बंद हुए हैं। तो ये उन तमाम लोगों के बारे में बात हो रही है। उनमें से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो वैसे कुछ अर्सा पहले मतलब कुछ साल पहले हकदार होने की सूरत में अहल करार पाए थे, लेकिन अब उनके माली हालात बेहतर हो चुके हैं। तो अब डायनामिक सर्वे में ये तय पाया गया कि वो अब हकदार नहीं है, इस वजह से उन्हें प्रोग्राम से नाअहल किया गया। तो ये भी एक वैलिड तरीकाकार है, ठीक है, और हुकूमत की जानिब से ये एक शफाफियत के तौर पर काम किया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो कुछ अर्सा पहले, जिनको कोई 3-4 साल ही नहीं गुजरे पैसे लेते हुए और सिर्फ कुछ अरसा गुजरा है, कुछ किस्तें उन्होंने ली हैं, तो उन्हें अब नाअहल कर दिया है। तो ये उन तमाम लोगों के बारे में बात हो रही है जो किसी न किसी जुगाड़ के तहत या किसी सिफारिश की बेस पे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन उनके माली हालात जो हैं वो काफी बेहतर हैं, वो इस प्रोग्राम के हकदार नहीं है। तो इस सूरत में जब आप नाअहल होते हैं तो फिर आपके कम चांसेस होते हैं कि आप अगले 2 साल में भी दोबारा अहल हो सकें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को ज्यादा गरीब जाहिर करते हैं कि भाई हमें गरीब होने की वजह से ये पेमेंट्स दी जाएंगी, और गरीब जाहिर करने की सूरत में उनका डेटा जो है वो मिसमैच हो जाता है। नादरा से भी वेरीफाई किया जाता है और वैसे भी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इदारों से आपका डेटा वेरिफिकेशन के बाद ही जांच पड़ताल से गुजरता है, ठीक है। अगर आपकी वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाती सही से, जांच पड़ताल ही सही से नहीं हो पाती, आपका डेटा मिसमैच हो जाता है, तो उस सूरत में भी आपको प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता। चाहे आप हकदार भी हों फिर भी आपका डेटा मिसमैच होने की वजह से आपको नाअहल रखा जाता है या काफी अरसा तक जांच पड़ताल में रखा जाता है, मतलब आपकी पेमेंट्स जारी नहीं की जाती। तो इस मसला से बचने का हाल ये है कि आप जब भी अपनी रजिस्ट्रेशन या रीसर्वे करवाते हैं तो सही मालूमात का इंदराज करवाया करें। अच्छा, अब ये जो डायनामिक सर्वे अहल नाअहल और नई किस्तों में इजाफे के हवाले से और बजट के हवाले से बात हो रही थी, वैसे अब 822.5 अरब रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की जा रही है, जो कि आप तमाम लोगों में तकसीम होगी। तो इतना बड़ा इजाफा तकरीबन हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ जो इस बार कफालत प्रोग्राम की किस्त में होने जा रहा है और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज में होने जा रहा है। तो इस हवाले से मजीद अपडेट्स भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन अभी नई किस्तों के बारे में बात करें तो कफालत प्रोग्राम की नई किस्तों की तकसीम मुकम्मल होने की सूरत में जारी की जाएगी जून वाली किस्त। इससे पहले अगर आपके अकाउंट्स में कोई पेमेंट्स है तो आप करीबी रिटेलर से आपसे निकलवा सकते हैं, लेकिन सिम अपनी ये किस्त लेने से पहले सिम लेना बहुत लाजिम हो चुका है आप तमाम लोगों के लिए, ठीक है। अभी आप किस्त की फिक्र छोड़ दें, आप अपनी वॉलेट सिम वसूल करें। जिन लोगों ने वॉलेट सिम वसूल कर ली है वो अभी कमेंट सेक्शन में यस लिख दें, और जिन लोगों ने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली वो कमेंट्स में नो भी लिखें और थोड़ी सी तवज्जो
तवज्जो जरूर दें कि भाई अब अगर आपने ये सिम ना ली तो सिम ना लेने की सूरत में आपके पैसे रोक दिए जाएंगे। आप हकदार भी हैं, आप अहल भी हैं, लेकिन आप सिम नहीं लेते तो आप खुद को नाअहल होने के बराबर ही समझें। उसकी वजह यह है कि अब रिटेलर शॉप वाला सिस्टम खत्म होने जा रहा है। अब आपको वही सिम दी जाएगी और उस सिम के जरिए पेमेंट्स दी जाएंगी। सिम पर आपका एक सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट ओपन किया जाएगा। तो ये डिजिटल वॉलेट सिस्टम लाने का मकसद ही यही है कि आपको लाइनों कतारों से छुटकारा मिले, आपकी कटौतियां ना हो, आपको कोई बड़ा इंतजार ना करवाना पड़े। तो ये जितने भी मसाइल हैं इनको खत्म करके अब सिर्फ एक सिम ही इनका हल बना दिया गया है। तो ये सिम जो है आपको BISP की ऑफिस से ही मिल सकती है। BISP की ऑफिस के अलावा कहीं और से अगर आप सिम लेते हैं और आप ये जहन बनाते हैं कि भाई यही सिम जो है हमारा BISP का काम करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको BISP की ऑफिस से ही ये अपनी सिम लेनी होगी, अदरवाइज आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं यही सिमें। और ये वॉलेट्स जो हैं ये भी अपने एंड से आपने ओपन नहीं करने। अगर आप पहले से सिमें ले चुके हैं तो सिमें अपने मोबाइल में डालें, महफूज रखें। 8171 से कोई भी मैसेज आए तो वो आप खुद अच्छी तरह से जांच पड़ताल से उसे पढ़ें, ताकि पता चले कि 8171 में क्या बताया जा रहा है। 8171 का कोई भी मैसेज आपकी सिम पे आता है तो आपने इग्नोर नहीं करना। दूसरी बात यह है कि कहीं भी BISP के हवाले से आपको किसी दूसरे नंबर 8171 वेब पोर्टल या 8171 के मैसेज के अलावा कहीं और से ये मैसेजेस आते हैं, कॉल जाती हैं कि आप कितनी रकम आई हुई है, तो आप उन पर भी यकीन ना धरें। तो BISP की तमाम शराइत और ज़वाबित पूरा करने पर ही आपको पेमेंट्स दी जाती हैं, आपकी मुश्किलात दूर होती हैं। तो मजीद इस तरह की नई अपडेट्स देखने के लिए अभी से YouTube चैनल कैलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।